राष्ट्रपति आईएएस आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव, जहां पे हम साल भर के करंट अफेयर्स पीटी 365 के थ्रू आपके कवर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू रोट लर्न, वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड इन अ सर्टेन टॉपिक, हाउ टू रीड इट, how to keep it in your brain, and what are the type of questions that UPSC can ask from that topic. That is our initiative. I'm Anuradha Jat, and let's begin. So the first news that we are going to cover is regarding national emergency. तो ये हम सबको पता है कि 1975 के टाइम पीरियड में भारत देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत जो लगाई जाती है। इस चीज को 50 साल हो चुके हैं, इस वजह से इमरजेंसी जो है वो वापस से न्यूज में है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको सबसे पहली न्यूज के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी पूछता है इससे रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा to ratify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence against the council of ministers and to impeach the president of India. तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बताने का आपको क्या रीजन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी को रैटिफाई किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो स्टैटिक आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इमरजेंसी रैटिफाई किस तरीके से होती है। सो इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी को रैटिफाई करने के लिए दोनों हाउसेस लगते हैं, तो आप ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है लोकसभा का। अगर इन तीनों ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा, जहां पे बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लाइक because Article 75 subclause 3, what does it say? That Council of Ministers is collectively responsible towards the Lok Sabha. And that is why the no confidence motion that has been passed should be should be the exclusive jurisdiction of the Lok Sabha. So this is the only option that is correct here, although the topic is not this. So these are the type of questions. The next question that has been asked in UPSC has been, if the President of India exercises his power as provided under the Article 356 of the Indian Constitution. So first you have to know that Article 356 says that if there is a failure of constitutional machinery in the state, okay, there is a precedent rule that is to be imposed in that state. And we call it state emergency as well in our mundane language. So in that particular state, what happens? That is the options. The assembly of the state is automatically dissolved. We'll read it that no, this does not happen. The powers of the legislature of that state shall be exercisable or under the control of the Parliament of India. This is correct. It is not under the President of India because President does not make law. Parliament make laws on behalf of that state legislature. Article 19 is suspended in that state. We'll see under what circumstances Article 19 is suspended. So these are the type of questions that has been asked under emergency. What is the reason that I have showed these questions to you? That what are the type of static that you should cover regarding this topic? So first you need to know the three articles, 352, 356 and 360. Article 352 says that there should be a national emergency, and what are the grounds of that national emergency? War or external aggression or armed rebellion. Okay, ये दो जो है, these are the grounds regarding national emergency. Then the president rule that question has been asked. What are the grounds? The breakdown of constitutional machinery, I've already told you one ground. Second, failure to comply with the direction of the union. In Article 365, one ground to apply Article 356 is this also. And if tomorrow a question UPSC frames in these lines, then you should know that failure to comply with the direction of the union is also a ground to impose precedent rule in that state. Third is financial emergency. Threat to financial stability or credit of India. Financial emergency has not yet imposed in India ever. ठीक है, अभी तक financial emergency को नहीं लगाया गया है. तो who is the authority who proclaimed these emergency? President of India. But we should know one thing. When in 1975 this emergency has been proclaimed, at that time there was no restriction. President can just proclaim it. But now, after that, we have learnt our lessons, and that is why 44th Constitutional Amendment Act 1978 has been imposed, which has said what? That President, after receiving the written decision of the Union Cabinet, that is the only part where cabinet word is mentioned in the whole constitution. The 44th Constitutional Amendment Act says that written recommendation of the Union Cabinet is required for the president. मतलब
कैबिनेट अगर रिटर्न में लिख कर देती है प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। दैट ये कब से आया? जब हमारे यहाँ पे 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, उसके बाद 1978 में हमने अमेंडमेंट करके ला दिया। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो अप्रूवल किसका लगता है? पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। पार्लियामेंट का अप्रूवल का मतलब अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, 1 महीने के अंदर अंदर, within 1 month must be approved by both the houses of the parliament. Duration, although it is valid for 6 months, ये 6 months तक वैलिड रहती है, लेकिन ये indefinitely लगाई जा सकती है अगर हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है तो। ओके, लोकसभा अगर डिसॉल्व है उस टाइम पे तो क्या होगा? इट विल कंटिन्यू अंटिल 30 days आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। ओके, no question has been asked on this, so you should know about this. What is the majority that is required? Special majority. What is a special majority? Majority of the total membership. Suppose the membership of a certain house is 200. Then what is the majority? Sorry, the membership of a certain house is 200. किसी house की member अगर 200 है तो इसकी majority कितनी रहेगी? 101. Okay. तो majority of the total membership, and along with the special majority, along with the normal majority, 2/3 of the members present and voting. That is the special majority that is required for the ratification of an emergency. ये याद रखना है, ठीक है, कि स्पेशल मेजोरिटी लगती है और स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? अगर 200 में से 101 है तो ये सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। दिस इज स्पेशल मेजोरिटी। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन दैट हाउस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी। रिवोक कौन कर सकता है? रिवोक का इसमें एक बड़ा स्पेशल प्रोविजन है जो आप सबको याद रखना चाहिए। प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं, मतलब इस चीज पे कोई रोक नहीं है, प्रेसिडेंट का जिस दिन मन करेगा, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। और लोकसभा जो है उस चीज को डिसअप्रूव भी कर सकता है सिंपल मेजोरिटी पे, पर प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली रिवोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, दोनों को। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो है स्टेट सब्जेक्ट पे भी सेंटर दे सकता है जब नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन में हो, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें इमरजेंसी लगाई जाती है। और पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे, आर्टिकल 250 में जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे। और प्रेसिडेंट जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एज वेल प्रेसिडेंट मे मॉडिफाई रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टेन्योर क्या है लेजिस्लेचर का? लोकसभा और स्टेट असेंबली जो है 1 साल का टेन्योर उनका बढ़ सकता है, जैसा कि हुआ भी था, ठीक है, बट 6 मंथ से ज्यादा नेशनल इमरजेंसी नहीं टिक सकती बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358 दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको पढ़ने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जाके। ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस टाइम पे मतलब कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक चीज जो याद रखनी है आपको कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, इन दोनों के अलावा सारे राइट्स आप रिवोक कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड हमारे जो जुडिशियल राइट्स है कि हमें मतलब अरेस्ट और डिस्टिट्यूशन वाले जो राइट्स है, उनके अलावा आप कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो रिवोक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा क्या ये मेजर अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, यू शुड जस्ट एक बार पढ़ जाना है आपको। 44th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो मतलब मैटर था पहले, कि 44th अमेंडमेंट ने नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड था, पहले नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे भी लगाई जा सकती थी, अब उस चीज को आर्म्ड रिबेलियन से हमने रिप्लेस कर दिया है। लगाई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ही नाम पे गई थी, ठीक है। उसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या किया गया है कि यूनियन कैबिनेट पहली बात तो रिटर्न रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, तभी इमरजेंसी आप लगा सकते हो। मैंडेटरी पार्लियामेंट अप्रूवल होगा विद इन अ मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी, ये भी 44th अमेंडमेंट लेके आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कर दी है, आर्टिकल 359, ठीक है, 359 के तहत पहले सारे आर्टिकल्स रिवोक किए जा सकते थे, अब 20 और 21 नहीं कर सकते आप। ये भी 44th अमेंडमेंट में ही लेकर आए हैं। इसके अलावा आप कर सकते हो आर्टिकल 358 ना ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, लेकिन सिर्फ कब? जब इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल को हमारा पाकिस्तान से वॉर हो जाता है, ठीक है, तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंडेड माना जाएगा। क्यों? आप बेसिक कॉमन सेंस भी लगा के देखिए
कि हमारा वॉर चल रहा है एंड सपोज यहाँ पर प्रोपोगेंडा वॉर हो गया, ठीक है, जैसा कि हुआ भी था कि राफेल गिरा दिया इंडिया का और ये सारी चीजें हो गई, तो देयर हैज टू बी सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, क्योंकि पता चल रहा है हम वहां वॉर लड़ रहे हैं या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। ओके, तो इस कारण जो है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 358 में लिखा है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कब, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे इमरजेंसी लगाई गई हो, आर्म रिबेलियन के टाइम पे नहीं। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको, यहाँ ये जो एक्सेप्शंस है ना, क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। और आर्टिकल 359 क्या कहता है, 20 और 21 के अलावा सारे आर्टिकल्स आप रिवोक कर सकते हो और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये हमें पता है, बाकी सारी चीजें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आपके स्टैटिक में आ जाती हैं, है ना। टर्म ऑफ लोकसभा जो है 5 से 6 साल हो गया था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को भी रिस्टोर कर दिया यहाँ पे। पहले ऐसा था कि मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट्स या फिर कोई भी इलेक्शन वाली चीजें होंगी वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगी, तो ये तो जुडिशरी मानती ही नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू के बाहर आप चीजें रख सको, है ना। इट इज कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज, और इस तरीके से जो है हमें चीजें पढ़नी है कि क्या क्या स्टैटिक हमें चीजें कवर करनी रहेंगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो असेंट टू स्टेट बिल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर क्या हुआ था, तमिलनाडु का मैटर है ये, ठीक है, तमिलनाडु का मैटर है। तमिलनाडु के गवर्नर जो है इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए दिया था प्रेसिडेंट को बिल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन बता दी थी कि इस टाइमलाइन के अंडर अंडर जो है गवर्नर्स को मतलब प्रेसिडेंट को, गवर्नर जो है वो जो बिल देता है, जो आर्टिकल 200 और 201 के अंडर जो प्रेसिडेंट को के लिए रिजर्व किए जाते हैं बिल, इस टाइमलाइन के अंडर अंडर प्रेसिडेंट जो है उन्हें डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया तो फिर कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है मामला, या अगर गवर्नर भी अपने आप पे रिजर्व कर रहा है वो बिल तो कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है ये मामला, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज पे बहुत बवाल हुआ। क्यों बवाल हुआ? बिकॉज एवरीबडी वाज सेइंग दैट दिस इज totally violation of constitution. Supreme Court is acting as that of parliament. Supreme Court is trying to take the power of the parliament, okay, which can be interpreted in varied things. तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गई सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे एक प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस लिया गया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया जो आर्टिकल 143 के अंडर होता है, ठीक है। जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टाइमलाइन इंपोज किया गया है, ऑल्दो वो टाइमलाइन इस तरीके का नहीं था कि वो बिल जो है वो अपने आप पास हो जाएगा उस टाइमलाइन के अगर वो किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया कि कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइमलाइन फॉर द डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, ठीक है, ऑन ग्रांटिंग द असेंट टू द बिल्स। अब हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है ये न्यूज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे दो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 200 में गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट बिल, ठीक है, कि आर्टिकल 200 में मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है, ठीक है, तो गवर्नर इस चीज पे 4 एक्शंस ले सकता है। वो 4 एक्शंस कौन कौन से हैं कि या तो वो असेंट दे सकता है इस बिल को, या वो विदहोल्ड कर सकता है उस असेंट को, ठीक है, या वो रिटर्न कर सकता है। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता वो, ये याद रखना है आपको। लेकिन बाकी सारे बिल को गवर्नर जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है विद सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट, ओके। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने फिर से इसको पास कर दिया विद और विदाउट चेंजेस, तो ये मैंडेटरी है कि गवर्नर जो है उसे उसका असेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अनलाइक प्रेसिडेंट ये यहाँ पे गवर्नर के पास है, ठीक है। गवर्नर को ये देना ही पड़ेगा फिर असेंट। और चौथा क्या है? रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 200 में मेंशन्ड है, ओके। अब वैसे तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है कि कौन से बिल्स जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, लेकिन हमारा संविधान एक पर्टिकुलर चीज को मेंशन करता है जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हमारे गवर्नर की कि ऐसे बिल तो आपको रिजर्व करके ही रखने हैं प्रेसिडेंट के। वो कौन सी ऐसी चीज है? तो जहां पर पावर ऑफ हाई कोर्ट कर्टेल हो रही हो या डेरोगेट हो रही हो, ठीक है, किसी बिल में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट कैन बी आस्क्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर की खुद की डिस्क्रिप्शन है, मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई फेडरल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो रही हो जो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की कुछ ब्रीच हो रही है जो कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने चाहिए, तो वो आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है।
अब आर्टिकल 201 में ये दे रखा है कि प्रेसिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर द बिल्स दैट हैज बीन रिजर्व बाय द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो रिजर्व करेगा बिल प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो 3 एक्शंस ले सकता है। असेंट दे सकता है इसको, ये लॉ, ये बिल एक्ट बन जाएगा। विद होल्ड कर सकता है ये असेंट, बिल रिजेक्ट हो जाएगा। या रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, ये मनी बिल के लिए नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, विद सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो ये रिकंसिडर करेगा। ठीक है, और अगर फिर से पास करेगा तो फिर भी प्रेसिडेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो असेंट ग्रांट करेगा या विद होल्ड कर लेगा। यहाँ पे गवर्नर की तरह नहीं है कि अगर फिर से वो लेजिस्लेचर पास हो जाता है तो वो एक्ट बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। इतनी ही चीज हमारे प्रीलिम्स के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री सीपी राधाकृष्णन जो है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। श्री जगदीश धनखड़ जी जो है उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, मिड टर्म रिजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो यहां से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 35 साल उनकी एज होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी एलिजिबल टू वोट, है ना, ये होना चाहिए। सेकेंड, चौथा जो है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो हमें पता ही है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है। तो यहाँ पर मैं आपके बस कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा सकती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं करवा सकती हूँ वो ये है कि लूप होल्स आपके जो है, लास्ट में जो लूप होल्स रह जाते हैं, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे इन सारी चीजों से। तो बहुत ही ध्यान से सुनना इन लेक्चर्स को। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रखी है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन करता कौन है? ठीक है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन होता है? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो। क्या यही सेम चीज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के उसमें होती है? जब हम कनेक्ट करके चीजें पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो नहीं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। ठीक है, और दूसरी बात, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होते। ठीक है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, जहां पे ये मैंडेटरी होता है कि आपको अपनी पहली चॉइस तो बतानी ही पड़ती है। ठीक है, जो आपको वोट, मतलब मान लीजिए आपको एक पेज मिला है तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपनी पहली चॉइस तो बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है ना। मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने अपना फर्स्ट जो चॉइस है वो सीपी राधाकृष्णन जी को लिखा है। ठीक है, तो ये किसी को नहीं पता चलेगा, ये सीक्रेट बैलेट है। और इसी वजह से यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। ठीक है, तो मैं ऑपोजिशन मेंबर भी हूं तो ये किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया है। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 65 ये कहता है कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट एज वेल। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो बीमार है या फिर प्रेसिडेंट नहीं है हमारे, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। ठीक है, ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ हिज ऑफिस। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोस्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, जो चेंबर ऑफ स्टेट्स है हमारा। आर्टिकल 61 जो है, 67 जो है वो ये कहता है कि जो टर्म होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का, वो कितना होगा? 5 साल का टर्म होता है। ऑल्दो उससे पहले रिजाइन कर सकते हैं, जैसे जगदीश धनखड़ जी ने किया। ये रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? तो जगदीश धनखड़ जी जो हैं इन्होंने रिजाइन किया होगा लिख के, किनको? द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, अ, जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो प्रेसिडेंट को लिखा जाता है। उसके बाद इन्हें रिमूव कैसे किया जा सकता है? इन्हें रिमूव करने से पहले ना इनके इलेक्शन को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्टोरल, मतलब जो कॉलेज होता है, जो इनके इलेक्शंस होते हैं, वो करवाता कौन है? ठीक है, तो इसको करवाता है
डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकसभा या डायरेक्टर जनरल ऑफ राज्यसभा, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हीं को अपॉइंट करता है, दो में से एक को। और ये ना मतलब एक बार ये और एक बार ये इस तरीके से रोटेशन में चलते हैं। तो इस बार डायरेक्टर जनरल ऑफ राज्यसभा जो है इन्होंने करवाया, विजय कुमार जी हैं ये, ठीक है, इन्होंने करवाया था ये। इसके अलावा अगर कोई फ्रॉड इलेक्शन में, तो ये जो गुहार है ये हम कहाँ लगाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है। ये ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। वही मान लीजिए आपको राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में कोई मतलब डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, तो वहां पे फिर केस कहाँ पर लगेगा, तो मान लीजिए आपने राज्यसभा मेंबर मध्य प्रदेश के आप, ठीक है, और वहां पे आपको डिस्क्रिपेंसीज के लिए केस लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे आप, तो आप हाई कोर्ट में, अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया के हाई कोर्ट में केस लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब ये रिमूव कैसे होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है स्टार्ट होता है राज्यसभा में खुद, है ना, और इसका ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसका ग्राउंड मेंशन है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का ग्राउंड मेंशन है। क्या ग्राउंड है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के, एक जो सोल ग्राउंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। इसका इनिशिएशन होता है राज्यसभा में, राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू जो है वो पास होगा राज्यसभा में, और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूज इन ऑफिस, ये जो अगर रिमूव भी हो जाते हैं तो ये ऑफिस तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आ नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्पीकर ऑफ इंडिया की। एक्चुअली में नॉट स्पीकर ऑफ इंडिया पर से, लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एज इम्पैनल्ड मेंबर टू प्रिसाइड ओवर हाउस प्रोसीडिंग्स। हमारे पास डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, लेकिन हम जो है वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक मेंबर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। ये होते कौन है, ये वो लोग होते हैं जब स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर अगर हाउस में नहीं है तो ये लोकसभा को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन बोला जाता है इनको। इसमें 10 एमपीज जो हैं वो स्पीकर अपॉइंट करता है। तो ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीकर, आर्टिकल 93 में जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, स्पीकर लोकसभा में होता है जो लोकसभा को प्रेसाइड करता है। आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों की बातें की गई हैं। प्रेजेंट में हमारे पास डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, ठीक है। तो स्पीकर जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो जो हाउस है, लोकसभा जो है वो अपने ही मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को चुन के एज स्पीकर जो है वो इलेक्ट करती है, ठीक है। और ये सदियों से मतलब एक कन्वेंशन बना रहा है, सदियों से इन द सेंस कई सालों से एक कन्वेंशन है कि मतलब ये इलेक्शन नहीं होता है, जो विनिंग पार्टी होती है वही अपना एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर देती है, और जो ऑपोजिशन होता है वो इस चीज को मतलब अनकंटेस्टेड रख के ही अपने आप वो, क्योंकि ऑफ कोर्स जो विनिंग पार्टी है उसके पास नंबर्स हैं तो वो वैसे भी इलेक्ट वही होगा बंदा, लेकिन ये अनकंटेस्टेड सा था पहले। इस बार क्योंकि ऑपोजिशन नहीं चाहता था टू इलेक्ट समबडी, है ना, तो दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो पुट अप देयर कैंडिडेट एंड इट वाज नॉट अनकंटेस्टेड, इट वाज इन कन्वेंशन, इट कुड बी ब्रोकन डाउन एज वेल, कन्वेंशन नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और सम रूल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ स्पीकर, यहाँ क्योंकि सेक्शन के बारे में बात की जा रही है, सेक्शन नहीं एक्चुअली वो रूल है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग ये चैनल पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात की गई है, ठीक है। अब ये जो स्पीकर है इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं हम इसे। इफेक्टिव मेजोरिटी जो है इससे हमारा जो स्पीकर है उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो मेजोरिटी होती है उसे इफेक्टिव मेजोरिटी कही जाती है। वहीं स्पेशल मेजोरिटी जो है वो मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जो मेजोरिटी है उसके अलावा, जब 2/3 मेजोरिटी को हम काउंट करते हैं तो इसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ओके। यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी की बात की गई है कि स्पीकर रिमूव होता है बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड अ मिनिमम ऑफ 14 डे नोटिस। 14 दिन का जो है नोटिस पहले स्पीकर को दे दिया जाता है बिफोर मूविंग सच एन रेजोल्यूशन अगेंस्ट द स्पीकर। कोई ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में एज प्रेसिडेंट नहीं दे रखे हैं स्पीकर के रिमूवल के, ठीक है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये लोकसभा के, और लोकसभा में जितनी सारी चीजें होती है स्पीकर जो है उसे हेड करते हैं, ओके। जब भी स्पीकर के रिमूवल की बात हो रही होती है तो ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर मैटर के लिए, ओके।
हालांकि ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। यहाँ एक चीज स्पीकर के वोटिंग के बारे में भी बात कर ली जानी चाहिए कि नॉर्मली स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गए। तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स जब भी हो जाते हैं किसी भी चीज में, तो स्पीकर जो है अपना कास्टिंग वोट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ऐसा रेजोल्यूशन जो स्पीकर के खुद के रिमूवल की बात कर रहा है, तो उनको बिल्कुल मौका मिलता है टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, ना वो चेयर करते हैं उस चीज को, और उन्हें वोट करने का अधिकार मिलता है। कास्टिंग वोट नहीं होता उनका। ओके। स्पीकर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। ये आपका स्टैटिक वाला पार्ट है, ज्यादातर आपको मेंस में काम आएगा स्पीकर की ड्यूटीज के बारे में। यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज में, क्योंकि हमारे पास कोई डिप्यूटी स्पीकर अभी है नहीं। ठीक है, तो ये काफी टाइम अपोजिशन भी इसको बार बार उठाता रहता है। ओके। 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद जब आया, तब ये जो डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है ये बनाई गई। ओके। इस पोस्ट को सबसे पहले जिन्होंने हेल्ड किया था, ही वाज सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ही फर्स्ट टाइम हेल्ड दिस ऑफिस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कोइंसिडेंटली ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नॉन इलेक्टेड ऑफ कोर्स, इन्हें नॉमिनेशन के तहत जो है वो 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज। उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये हमारे फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर भी थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और M A अयंगर जो है ये फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर बने पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। इसका इलेक्शन कैसे होता है, लॉन्ग टर्म कन्वेंशन है यहाँ पर भी, कि स्पीकर जो है वो हमारी मतलब विनिंग पार्टी से होता है, और ऑपोजिशन से जो है वो डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होता है। एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर, ये जो है ये भी सेम स्पीकर डेट फिक्स करता है डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की, और उसी दिन जो है वो इलेक्शन हो जाता है। ठीक है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल जो है, अगर रिमूवल है तो इसका सेम वैसा ही रिमूवल है जैसा स्पीकर का होता है। ठीक है, वही रेजोल्यूशन पास होता है हाउस में, लोकसभा में ही हो जाता है, लोकसभा में ही खत्म हो जाता है, सेम एज स्पीकर, है ना। और यहाँ पे एक चीज जो मैटर करती है हमारे लिए, वो ये है कि स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास तो डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, तो अगर हमारे स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसे रेजिग्नेशन देंगे। फूड फॉर थॉट, रिसर्च इट। डिप्यूटी स्पीकर के पास सेम पावर होती है प्रिसाइड करने की जैसे कि स्पीकर के पास होती है इन द वैकेंसी, अगर स्पीकर हाउस में नहीं है तो। ठीक है, वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। और जब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं होगा, तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो है वो नॉमिनेट करते हैं स्पीकर, उसमें से एक जो है वो प्रिसाइड करते हैं हाउस को। यही न्यूज थी। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज है एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, दल बदल कानून कहते हैं इसको, सो दैट एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA है वो दूसरी पार्टी में, मतलब ये लोग पहले इस तरीके से डग डग खेला करते थे। ठीक है, दैट इज वाई ये लॉ जो है वो लाया गया था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। न्यूज है इस बारे में कि पार्टी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एड्रेस किया इस चीज को लेके कि स्पीकर जो है वो बहुत ज्यादा डिले करते हैं रिगार्डिंग द पटिशंस कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs। तो ये है क्या ADL, स्टैटिक में आपसे यही पूछा जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज, अगर कोई मेंबर वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप रिजाइन करता है पार्टी से, ठीक है, या फिर वोट से एब्सटेन करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ बनना है, ठीक है, और सिटिंग पार्टी का MP है और वो उस लॉ के अगेंस्ट वोट करता है, दैट इज अ ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी पार्टी के विप की कही गई बात जो है उसके खिलाफ वोट किया है, दैट इज अ ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। ही एब्सटेन्स, नहीं वोट करना, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, विदाउट कंडमनेशन विद इन 15 days। सेकेंड, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले ज्वाइन करता है वेल एंड गुड, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है।
तीसरा, कोई नॉमिनेटेड मेंबर, अगर नॉमिनेटेड मेंबर जीत जाता है या नॉमिनेट हो जाता है, ही जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसके पास ये 6 मंथ्स वाला ब्रैकेट होता है कि वो इन 6 महीनों में कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद he joins any political party, that is a ground for anti-defection and he can be disqualified from his or her membership. इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टी मर्ज हो जाएगी, ठीक है, दो पार्टीज मर्ज हो गई है, दैट इज नॉट द ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। या किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स से 2/3 लेजिस्लेचर्स अगर हैं, वो उस पार्टी में मर्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द recent case of merging of the MLAs in Madhya Pradesh, ठीक है, no anti-defection has been evoked in that case. Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha, and Deputy Chairman of Rajya Sabha, they may resign from the party and rejoin after demitting the office as well, and that is not the ground for their defection or their disqualification. Okay, so this is the ground and disqualification and exceptions regarding the anti-defection where the UPSC can ask questions as well. आप रिजाइन या आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपकी पार्टी के कॉन्डक्ट के खिलाफ है, एंटी डिफेक्शन के आप मतलब बिल्कुल पास हो, है ना। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग होता है। इसकी कुछ कुछ स्टैटिक बातें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 10 शेड्यूल जो है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो दे रखा है। ये हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 जो है उसके अकॉर्डिंग एंटी डिफेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया है। अब ये एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई करता कौन है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विल टेल, ठीक है, कि क्या मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ में। ओके, और इट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड। सबसे ज्यादा पंगे यहीं पे आते हैं कि इस लॉ ने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया डिसाइडिंग ऑफिसर को कि उसको कितने दिन में ये जो मामला है डिस्क्वालिफिकेशन का इसको सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे बहुत बहुत टाइम गुजर जाता है जैसा कि इस केस में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यूपीएससी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है वो याद रखनी है। और बहुत सारे जो जुडिशियल केसेस हुए हैं जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि पहला केस था जो बहुत फेमस केस है हमारा, किहोतो वुलन केस, किहोतो वुलन। इसमें क्या बोला था कि ऑल्दो स्पीकर लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका डिसीजन, लेकिन ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर स्पीकर जो है वो बायस्ड होकर डिसीजन लेता है, किसी पार्टी के ही लिए डिसीजन लेता है, किसी स्पेसिफिक पार्टी के खिलाफ डिसीजन लेता है, दैट इज गोइंग टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे, तो जुडिशरी पे कंटेस्ट किया जा सकता है ये। रवि कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर जो है उसको न्यूट्रल एजुकेटर की तरह बिहेव करना है यहाँ पर, ठीक है। यू शुड कीप it balanced. But just because you belong to a certain party doesn't mean you are the speaker of that party and you are a neutral figure. है ना? That is what Supreme Court has said. Same with Karnataka case कि Parliament to consider transferring disqualification powers from speaker to an independent tribunal as well. That will also happen. Okay. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिटिंग लॉ मेकर के लिए है, ठीक है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर किया गया है। तो इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिसमें से एक ग्राउंड है कि अगर उन पर कोई केस होता है और वो कन्विक्ट हो जाते हैं कुछ इलीगल काम करते हुए, तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट सिटिंग एमपी फ्रॉम द पार्लियामेंट। ओके, तो ये न्यूज एक कर्नाटका के एमएलए की है जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं अंडर 191 करके आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये दे रखा है, और इसको सब्सटैंशिएट करता है सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ओके, ये कन्विक्ट हुए हैं किस चीज पे, सीबीआई कोर्ट ने इनको इलीगल माइनिंग के केस में कन्विक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है हमें इस चीज में, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि एमपी और एमएलए के जो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन की चीजें हैं वो क्या क्या है और कौन से आर्टिकल्स में दे रखी है। तो 102 में एमपी और 191 में एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अनसाउंड माइंड का होना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया का ना होना, डिफेक्ट कर जाना जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने अभी देखा, है ना, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इस वजह से उनका डिस्क्वालीफाई हो जाना। ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब
इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये बोलता है कि एनी लेजिस्लेचर, ठीक है, he can be disqualified from contesting elections or even continuing in office, ठीक है, upon conviction in certain offenses, जहां पे ऐसे ऑफेंस उन्होंने क्रिएट किए हैं 2 साल से ज्यादा की सजा होती है इसमें उनको, ठीक है। ये रीसेंट आपने बहुत एक फेमस केस था इसमें कि हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जिसमें कन्विक्ट हुए थे, वहां पर भी यही वाली जो आर्टिकल 1 का यही वाला सेक्शन जो है वो इन्वोक किया गया था। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया जिसमें 2 साल से ज्यादा की आपको सजा हुई है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वही एक केस हुआ था लिली थॉमस केस 2013 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है, लॉ मेकर इज इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अट्रैक्टिंग सच कन्विक्शन, ठीक है। ये लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ऑल्दो बाद में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे किए गए थे, यहाँ पे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस न्यूज में, ठीक है। आर्टिकल 102 and आर्टिकल 191 दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन। की न्यूज क्या है कि यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। अब यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये बिल जब एक्ट बन जाएगा ये तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब तक ये बिल है तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट माइट पास, इट माइट नॉट पास, इट माइट पास अलॉन्ग विद सर्टन रिफॉर्म्स जो कि बाद में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, वी कैन स्किप दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि पार्लियामेंट की कमिटीज के बारे में है। ये न्यूज क्या है कि रिसेंटली लोकसभा जो है उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट की कमिटीज आर नॉट एडवर्शियल टू द गवर्नमेंट बट एक्ट एज सपोर्टिव एंड करेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो न्यूज में हमें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, पार्लियामेंट्री कमिटीज खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लेटली पूछे